આ આપણું અખંડ ભારત છે. અખંડ ભારતનું શમણું છે આજ અમારી આંખોમાં, એવું ગીત તો આપણે ગાતા જ હતા. આ અખંડ ભારતને અખંડ ભારત જ બનાવી રાખવા માટે એની ભૂમિનો, એની ઉપર આવેલા પર્વતોનો, નદીઓનો, આ બધાનો પરિચય તો આપણે મેળવવો જ પડે. ચાલો આપણે આજે આનો પરિચય મેળવીએ. આ ભારતનો રાજકીય નકશો છે, જે અખંડ ભારત નથી. પાકિસ્તાન, ચીન વગેરે ભાગો ભારતથી અલગ પડેલા જોઈ શકાય છે. આ ભારતનો જ એક પૂર્વ ભાગ કે જેનો ઉલ્લેખ સમાચારોમાં, છાપાઓમાં ખૂબ ઓછો જોવા મળે છે, એ પૂર્વોત્તર ભારત, જેને સપ્તભગીની પ્રદેશ પણ કહેવાય છે, એ પૂર્વોત્તર ભારતમાં નાગભૂમિ રાજ્ય આવેલું છે, જેનો આપણે આજે પરિચય મેળવવાનો છે. અહીં પૂર્વોત્તર ભારતનો નકશો, માનચિત્ર જોઈ શકાય છે, જેમાં મિઝોરમ, મણિપુર, નાગાલેન્ડ એટલે કે નાગભૂમિ, અસમ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, આ સપ્તભગીની અને ત્રિપુરા, આ 7 રાજ્યો આવેલા છે. આ 7 રાજ્યો સપ્તભગીની પ્રદેશ એ નામે જાણીતા છે. આ સપ્તભગીનીમાંથી એક ભગીની પ્રદેશ નાગાલેન્ડ, એવું જે અંગ્રેજોએ જેનું નામ આપ્યું છે, એવી નાગભૂમિ રાજ્યનો પરિચય આજે આપણે મેળવવાનો છે. આ નાગભૂમિનું માનચિત્ર છે. આપ જોઈ શકો છો, નાગભૂમિ ભારતના ઉત્તર પૂર્વ ભાગમાં આવેલું છે. તેની ઉત્તરમાં અરુણાચલ પ્રદેશ છે, પશ્ચિમમાં અસમ અને દક્ષિણમાં મણિપુર રાજ્ય આવેલા છે. પૂર્વમાં તે મ્યાનમાર સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા ધરાવે છે. નાગભૂમિ એ 26.30°થી 27.24° ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્ત અને 96°થી પૂર્વ રેખાંશ વૃત્ત વચ્ચે આવેલું છે, અને તે 16,579 ચોરસ કિલોમીટર જેટલો વિસ્તાર આવરી લે છે. નાનકડું રાજ્ય છે. આ ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યમાં એ પર્વતીય પ્રદેશ આવેલો છે. આખું રાજ્ય અપ્રતિમ કુદરતી સૌંદર્યથી ભરેલું છે. નાગભૂમિની અંદર આવેલા જે 11 જિલ્લાઓ છે, એ 11 જિલ્લાના નામ પણ આમાં જોઈ શકાય છે. નાગભૂમિ વિશે પરિચય મેળવવાનો હોય અને અહોમ સામ્રાજ્ય વિશે ન જાણીએ તો એ કેવી રીતે ચાલે? નાગભૂમિ, મણિપુર, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, અસમ, ત્રિપુરા, આ આખોય સપ્તભગીની પ્રદેશ પહેલાંના જમાનામાં એટલે કે પ્રાચીન સમયમાં પ્રાગ જ્યોતિષપુર અથવા તો કામરૂપ પ્રદેશના નામે જાણીતો હતો. આપણે એનો ઇતિહાસ જોઈએ તો ઈસવીસન 1205ની સાલમાં સૌથી પહેલું મોગલ આક્રમણ ભારત ઉપર થયું, ત્યારે પૂર્વોત્તર બાજુ કોઈની નજર નહોતી. મોગલ શાસકોની નજર આ પૂર્વોત્તર રાજ્યો પર પડી નહોતી. પણ 1205ની સાલમાં બખ્તિયાર ખિલજીએ કામરૂપ પ્રદેશ ઉપર આક્રમણ કર્યું. એ કામરૂપ પ્રદેશ ઉપરનું પહેલું મુસ્લિમ આક્રમણ હતું. એ વખતે કામરૂપમાં પૃથુ નામે રાજા હતો. તેમનું બીજું નામ જલ્પેશ્વર હતું. જલપાઈગુડીમાં એમણે જલ્પેશ એટલે કે શિવ ભગવાનનું બીજું નામ છે જલ્પેશ, એનું મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. એ વખતે પણ રાજા પૃથુની સેનાએ મુસ્લિમ સેનાનો ભયંકર પરાજય કર્યો હતો. અડધી સેના યુદ્ધમાં મરાઈ ગઈ અને બખ્તિયાર ખિલજી છે એ ભાગી ગયો. આ પછી બીજું આક્રમણ 1254ની સાલમાં થયું. 1254ની સાલમાં મલિક ઉઝબેક નામના એક મુસ્લિમ આક્રમણકારીએ કામરૂપ પ્રદેશ ઉપર ચડાઈ કરી. આ આક્રમણ અતિશય ભયંકર હતું. તેમાં કામરૂપ નરેશ પરાજિત થયો, પણ તેણે જંગલમાં આશ્રય લીધો અને બદલો લેવા માટે સેનાને સંગઠિત કરી. રાજાની આજ્ઞા થતાં સમગ્ર પ્રજા સંઘર્ષ માટે ઉતરી, અને આખી પ્રજાએ એટલો નિડરતાથી એનો સામનો કર્યો કે મલેક ઉઝબેકનું આક્રમણ જેટલું ભયંકર હતું, તેનાથી પણ વધારે ભયંકર તેનો પરાજય હતો. એટલો બધો ભયંકર પરાજય થયો કે આ પછી લગભગ 200 વર્ષો સુધી કામરૂપ પ્રદેશ ઉપર કોઈ ઇસ્લામી આક્રમણ કરવાની યોજના બનાવી શકાય નહીં. આ પછી ઈસવીસન 1555માં જ્યારે દિલ્હીમાં બાબર વંશની સલ્તનતની શરૂઆત થઈ, ત્યારે આસામમાં 2 સત્તાઓ પ્રભાવી હતી. આજના કૂચ બિહારથી લખીમપુર સુધીના ભૂપ્રદેશમાં કોચ સામ્રાજ્ય હતું, અને કોચ નરેશ નરનારાયણ મહાદેવ એ શાસનમાં હતો.
16મી સદીમાં બ્રહ્મપુત્રની ઉત્તરીય ખીણમાં અહોમ રાજ્ય હતું. આ મિત્રો અહોમ રાજ્યની આજે આપણે વાત કરવાની છે, જે 600 વર્ષ સુધી જેણે મુગલ આક્રમણોનો પ્રતિકાર કર્યો. આ અહોમ એ દિલ્હીની મુગલ સલ્તનત અને બંગાળના સુલતાન બંને આ અહોમની હિન્દુ સત્તાને ઉખેડી મૂકવા માંગતા હતા. એટલે હુસેન શાહ નામના એક મુસલમાને અહોમ સામ્રાજ્ય ઉપર આક્રમણ કર્યું, પણ અહોમ નરેશ વિશ્વસિંહ એણે એને કારમો પરાજય આપ્યો. 1532ની સાલમાં સિંગેરીનું યુદ્ધ થયું. આ યુદ્ધનો ઉલ્લેખ આજે પણ ઇતિહાસમાં ગૌરવાન્વિત થયેલો છે. નુસરત ખાન નામના એક મુસ્લિમ આક્રમણકારીએ વિશાળ સેના અને સુસજ્જ તોપખાનું લઈને આક્રમણ કર્યું. સિંગરી પાસે તેણે પોતાની છાવણી નાખી. અહોમ સેનાએ તોપો ક્યારેય જોઈ નહોતી. તોપોથી પણ યુદ્ધ થઈ શકે એવી એમને ખ્યાલ પણ નહોતો. અહોમ સેનાએ જેવું આક્રમણ કર્યું કે તરત જ તોપના ગોળાઓ વરસવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં જ અહોમ સૈન્યના 300 સૈનિકો મરી ગયા. અહોમ સેનાપતિ પ્રાચીન મુહુડ એ વીરગતિ પામ્યા. એના મૃત્યુના સમાચાર આવ્યા તો તેની પત્ની પણ યુદ્ધક્ષેત્રમાં ગઈ અને શત્રુઓ સામે લડતા લડતા તે પણ વીરગતિ પામી. અહોમ સેના એ સુસજ્જ થઈને આક્રમણ કર્યું, પણ આ તોપ ઘોડાનો સામનો તે કરી ન શકી અને હારી ગઈ. બીજી વાર હારી જવા છતાં અહોમ સેનાનું મનોબળ તૂટ્યું ન હતું. વર્ષા ઋતુના કારણે જ્યારે યુદ્ધ બંધ હતું ત્યારે બંને સેનાઓ પોતપોતાના સ્થાનો ઉપર શાંત ઊભી રહી. અહોમ નરેશ સુહુડ જે વીરગતિ પામ્યો હતો, એનો પુત્ર સુકેન યુદ્ધમાં ઘાયલ થયો હતો, પણ બહુ જ સાહસિક અને નીડર હતો. વર્ષા ઋતુ પૂરી થઈ એટલે તરત જ તે પોતાના સર સેનાપતિના સ્થાન ઉપર હાજર થયો અને અહોમ સામ્રાજ્ય અને તેણે આક્રમણ કરીને શત્રુઓની 22 નૌકાઓનો નાશ કરી નાખ્યો. સેંકડો મુસ્લિમ સૈનિકોને જળસમાધિ લેવડાવી. એ જ વખતે પાયદળ સેનાએ પણ આક્રમણ કર્યું અને મુસ્લિમ સેનાને તોપખાનાનો ઉપયોગ કરવાનો સમય જ ન મળ્યો. પાયદળે પણ આક્રમણમાં લગભગ 2500 મુસ્લિમ સૈનિકોને મારી નાખ્યા હતા. આ એક સુંદર વિજય હતો અને એ પછી ઘણા વર્ષો સુધી મુસ્લિમ સેના પરાજિત થતી રહી. અંતિમ યુદ્ધ ભરાલીમાં થયું 1500ની સાલમાં અને એ પછી એ ભરાલીના યુદ્ધમાં હાર ખાધા પછી એ સુલતાનોએ જે મુસ્લિમ આક્રમણકારીઓ હતા એણે 80 વર્ષ સુધી આ કામરૂપ પ્રદેશ ઉપર હુમલો કરવાની કે યુદ્ધ કરવાની ચેષ્ટા ન કરી. આ પછી એક યુદ્ધ થયું જેમાં સર સેનાપતિનો હોદ્દો એને બળપુક્કન એવું નામ આપવામાં આવ્યું અને લાચિત બળપુક્કને એને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો. આ લાચિત બળપુક્કને કેવી રીતે અહોમ સામ્રાજ્યને બચાવી રાખ્યું અને મુસ્લિમ આક્રમણકારીઓનો સામનો કર્યો એનો એક વિડીયો છે, એ તમે જોજો એટલે તમને ખબર પડશે કે ખરેખર આપણા ભારતના વીરોએ કેવી રીતે આ મુસ્લિમ આક્રમણકારીઓ સામે આપણા ભારત વર્ષને ટકાવી રાખવા માટે સંઘર્ષો કર્યા હતા. फुकन नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूं. मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत. मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतरकरण में समाये रखी हैं. ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास और आपके शूरवीरों के साहसिक कार्यों से अवगत करवाएंगी. आज की कहानी के लिए चलते हैं असम. तकरीबन 1665 अहोम राज्य में कौन बनेगा बोरफुकन? ये महत्वपूर्ण प्रश्न राजा चक्रध्वज सिंघा ने अपने मंत्रियों और प्रधानमंत्री अतन बुरागोहेन को पूछा. काफी विचार विमर्श के बाद सभी की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, लसित. आज से लसित होगा हमारा बोरफुकन. यह घोषणा कर राजा चक्रध्वज सिंघा ने लसित को अहोम सेना का मुख्याध्यक्ष बना दिया. बोरफुकन नाम नहीं, अहोम सेनापति का खिताब है. अहोम सेना की संरचना बहुत ही व्यवस्थित थी. एक देका 10 सैनिकों का, बोरा 20 सैनिकों का, सैकिया 100 सैनिकों का, हजारिका 1000 सैनिकों का, राजखोवा 3000 सैनिकों का, फुकन 6000 सैनिकों का संचालन करता था. बोरफुकन इन सभी का प्रमुख होता था. किंतु आपको लसित का महत्व समझने के लिए अहोम इतिहास का सारांश जानना जरूरी है. सन 1228 ईस्वी में असम में ताई अहोम वंश का शासन स्थापित हुआ, जो म्यांमार से आए थे. इस राजवंश ने सदियों तक खिलजी, तुगलक, इलियास शाही,
लोदी और बंगाल सुल्तानों के आक्रमण से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की। लेकिन सन 1638 ईस्वी में मुगलों के एक बड़े आक्रमण में उन्हें हार कर आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। फिर सन 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना और सन 1661 में उसने अपने दो प्रमुख सेनापतियों मीर जुमला और दिलेर खान को पहले बंगाल और फिर असम भेजा। अहोम साम्राज्य की एकता और शौर्य, जिनके बल पर उसने इतने लंबे समय तक सारे आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोक रखा था, अब टूटने लगी थी। इस हमले में वो पराजित हो गए। कई किले तो बिना कोई लड़ाई लड़े ही हाथ से निकल गए। अहोम के राजा जयध्वज सिंघा को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने पूर्वोत्तर का बड़ा हिस्सा इस लड़ाई में खो दिया। उनको एक अपमानजनक संधि के लिए राजी होना पड़ा, जिसमें न सिर्फ राज्य, धन, भूमि, युद्ध के हाथी, बल्कि अपनी 6 साल की बेटी को भी मुगल हरम में देना पड़ा। इस पराजय और अपमान के कारण राजा जयध्वज सिंघा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद चक्रध्वज सिंघा को राजा बनाया गया और वहां से शुरू होती है लसित बोरफुकन की कहानी। लसित का जन्म सन 1620 में हुआ। उनके पिता मोमई तामुली बारबरू राज्य में एक उच्च पद पर अधिकारी थे। लसित को बचपन से ही राजकाज के कामों में रुचि थी। अपने परिश्रम से वो जल्दी ही 16 धारा बरुआ यानी शाही शॉल धारक बन गए, जो कि राज्य का प्रधान सचिव होता है। समय के साथ उन्हें कई और महत्वपूर्ण पदों पर आसीत किया गया, जैसे राजकीय घुड़शाला का अधीक्षक, राजा की सुरक्षा व्यवस्था का अधीक्षक इत्यादि। बोरफुकन बनने के बाद उनके सामने बहुत चुनौतियां थी। एक तरफ मुगलों की विशाल और संगठित सेना, जिनके पास शाइस्ता खान और दिलेर खान जैसे अनुभवी सेनापति थे, तो दूसरी तरफ अहोम की निराश और विभाजित सेना। अगले 4 सालों तक उन्होंने पूरा ध्यान सेना के निर्माण और अस्त्रों को जुटाने में लगाया। नए सैनिकों की भर्ती, जल सेना के लिए नौकाओं का निर्माण, युद्ध के हथियारों की आपूर्ति, तोपों का निर्माण, किलों के लिए मजबूत रक्षा प्रबंध इत्यादि। इन सब तैयारियों की मुगलों को भनक तक नहीं लग पाई, क्योंकि साथ में दोस्ती का दिखावा चलता रहा। ये राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का अत्यंत उत्तम उदाहरण था। सन 1667 में गुवाहाटी का फौजदार रशीद खान को बदलकर फिरोज खान को नियुक्त किया गया। वो बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसने चक्रध्वज सिंघा को सीधे सीधे असमिया लड़कियों को अपने पास भेजने का आदेश दिया। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों को मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए जोश दिलाया। लसित ने गुवाहाटी के किले को मुगलों से छीनने का निर्णय लिया। उनके पास एक शक्तिशाली और निपुण जल सेना थी और साथ ही जासूसों का जाल था। हाँ, लेकिन कमी थी तो घुड़सेना की। घेराबंदी करने के महीनों बाद तक भी गुवाहाटी को स्वतंत्र नहीं करा सके, जिसकी रक्षा इटाकुली का किला कर रहा था। अंत में उन्होंने दूसरी योजना बनाई, जिसमें इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाग हजारिका के नेतृत्व में 10-12 सिपाहियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से किले में प्रवेश कर लिया और मुगल सेना की तोपों में पानी डाल दिया। अगली सुबह ही लसित ने इटाकुली किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और एक बार फिर से गुवाहाटी ने आजादी की सांस ली। जब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह को 70,000 सिपाहियों की बड़ी सेना के साथ लसित से लड़ने भेजा। दिलचस्प बात यह है कि राम सिंह के साथ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह भी आसाम आए थे, पर उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। राम सिंह को डर था कि असामिया काला जादू और तांत्रिक विद्या में निपुण थे और उन्हें लगा कि गुरु तेग बहादुर इसे संभाल लेंगे। उधर लसित ने बिना एक पल गंवाए किलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सारे जरूरी इंतजामों को चालू कर दिया। एक बार उन्होंने अपने ही मामा को लापरवाही के कारण सिपाही की जान को जोखिम में डालते हुए पकड़ा और तुरंत ही उनका सिर कलम करवा दिया। उनका कहना था कि चाचा मामा देश से बड़े नहीं होते। इस घटना ने लसित बोरफुकन को अपने ही सिपाहियों की नजरों में उठा दिया। सबको यह विश्वास होने लगा कि मुगलों से सामना करना नामुमकिन नहीं है। अहोम सेना जब तक छापामार या गुरिल्ला युद्ध कर रही थी, तब तक राम सिंह पर भारी पड़ रही थी। राम सिंह ने फिर कपट का प्रयोग किया। लसित से नाराज सेना प्रमुखों को गद्दारी के लिए पैसों का लालच देकर अपनी ओर करने में कुछ हद तक सफल भी हुआ। फिर उसने अहोम सेना को खुले युद्ध के लिए उकसाया। लसित को पता था कि खुले युद्ध में मुगलों से जीत पाना असंभव है, क्योंकि उनके पास बेहतरीन घुड़सेना है। लेकिन राजा चक्रध्वज सिंघा ने बेताब होकर सीधे युद्ध का आदेश दे डाला। अलाबोई के मैदानी युद्ध 1669 में अहोम सेना की भयानक हार हुई।
लसित के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, पर खुशकिस्मती से लसित बच निकले और राज्य को भी बचाए रखा। दुर्भाग्य से 1670 में राजा चक्रध्वज सिंघा का देहांत हो गया और उदयादित्य सिंघा नए राजा बने। सन 1671 की शुरुआत में राम सिंह को अपने गुप्तचरों से पता चला कि अंदुराबली के किनारे पर रक्षा इंतजामों में भेद किया जा सकता है और गुवाहाटी को फिर से हथियाया जा सकता है। उसने इस अवसर का फायदा उठाने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र नदी के पास विशाल मुगल नाव सेना खड़ी कर दी। उसके पास 40 जहाज थे जो सभी 16 बंदूकों और छोटी नौकाओं को ले जाने में समर्थ थे। दुर्भाग्यवश लसित इस समय गंभीर रूप से इतने बीमार पड़ गए कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। सन 1671 में मार्च महीने में सरायघाट की लड़ाई शुरू हुई। ये उस यात्रा का अंतिम पड़ाव था जो 8 वर्ष पहले मीर जुमला के आक्रमण से शुरू हुई थी। ये बहुत अनोखी लड़ाई थी, भारतवर्ष के इतिहास में शायद अकेली महत्वपूर्ण लड़ाई जो पूर्णतया नदी में लड़ी गई, विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी में। पहले तो अहोम सेना का प्रदर्शन और योजना फीकी साबित हुई और असमिया पीछे हटने लगी। जब लसित को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने वैद्य और ज्योतिष दोनों की इच्छा के विरुद्ध जाकर लड़ने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि मुझे अकेला भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। जल में जो त्रिभुज बन गया था, कामाख्या मंदिर, अश्वक्लांता के विष्णु मंदिर और इटाकुली किले के बीच, उसमें घमासान लड़ाई हुई। असमिया सेना ने अपनी सालों की तैयारी और युद्ध की दक्षता का पूरा उपयोग किया। अहोम सेना ने काफी आधुनिक युक्तियों का उपयोग किया, जैसे पानीगढ़, जहां हथियार इकट्ठा कर शत्रु पर दागे जा सकते थे, नाव से रचे हुए पुल जो छोटे किले बन गए, अहोम की बच्छारी नाव जो मुगलों की नाव से छोटी थी पर ज्यादा तेज और खतरनाक। अहोम सेना दोनों तरफ से मुगलों पर टूट पड़ी और इतने में मुगल सरदार मुनव्वर खान गोली से मार गया। इससे मुगलों में गड़बड़ी मच गई और दिन के अंत तक उनके 3 अमीर और 4000 सिपाही मारे जा चुके थे। मुगल सेना पूरी तरह से बर्बाद होकर मानस नदी के पार भाग चुकी थी। सरायघाट की जीत ने जो आधारशिला रखी, उसकी बदौलत आगे आने वाले राजाओं जैसे कि रुद्र सिंह ने असम का खूब सांस्कृतिक और आर्थिक विकास किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। मुगल जीत शायद अपने साथ सर्वनाश, सांस्कृतिक विनाश और मुगल गुलामी लाती, लेकिन लसित बोरफुकन और बाग हजारिका उर्फ इस्माइल सिद्दीकी जैसे लोगों की बहादुरी और प्रभावशाली नेतृत्व के कारण ये हो नहीं सका। अफसोस, सन 1671 में लसित अपनी बीमारी के चलते इस युद्ध के कुछ दिन बाद चल बसे। सन 1682 में एक आखिरी युद्ध हुआ जिसमें अहोम सेना ने इटाकुली किले से मुगलों को भगा दिया और मुगल फिर कभी असम की ओर नहीं आए। लसित बोरफुकन, अतन बोरगोहेन और बाग हजारिका जैसे वीर पुरुष आसाम में तो बहुत प्रसिद्ध हैं, किंतु आसाम के बाहर बहुत लोग इनकी घटनाओं को नहीं जानते। पर गर्व की बात है कि हर साल 24 नवंबर को आसाम में लसित दिवस मनाया जाता है। आशा है कि ऐसे महापुरुषों की ख्याति बनी रहे, बढ़ती रहे और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहे। बोरफुकन। नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूं। मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत। मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतरकरण में समाये रखी हैं। ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास और आपके शूरवीरों के साहसिक कार्यों से अवगत करवाएंगी। आज की कहानी के लिए चलते हैं असम। तकरीबन 1665 अहोम राज्य में कौन बनेगा बोरफुकन? यह महत्वपूर्ण प्रश्न राजा चक्रध्वज सिंघा ने अपने मंत्रियों और प्रधानमंत्री अतन बोरगोहेन को पूछा। काफी विचार विमर्श के बाद सभी की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, लसित। आज से लसित होगा हमारा बोरफुकन। यह घोषणा कर राजा चक्रध्वज सिंघा ने लसित को अहोम सेना का मुख्याध्यक्ष बना दिया। बोरफुकन नाम नहीं, अहोम सेनापति का खिताब है। अहोम सेना की संरचना बहुत ही व्यवस्थित थी। एक देका 10 सैनिकों का, बोरा 20 सैनिकों का, सैकिया 100 सैनिकों का, हजारिका 1000 सैनिकों का, राजखोवा 3000 सैनिकों का,
फुकन 6000 सैनिकों का संचालन करता था। बोरफुकन इन सभी का प्रमुख होता था। किंतु आपको लसित का महत्व समझने के लिए अहोम इतिहास का सारांश जानना जरूरी है। सन 1228 ईस्वी में असम में ताई अहोम वंश का शासन स्थापित हुआ, जो म्यांमार से आए थे। इस राजवंश ने सदियों तक खिलजी, तुगलक, इलियास शाही, लोदी और बंगाल सुल्तानों के आक्रमण से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की। लेकिन सन 1638 ईस्वी में मुगलों के एक बड़े आक्रमण में उन्हें हार कर आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। फिर सन 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना और सन 1661 में उसने अपने दो प्रमुख सेनापतियों मीर जुमला और दिलेर खान को पहले बंगाल और फिर असम भेजा। अहोम साम्राज्य की एकता और शौर्य, जिनके बल पर उसने इतने लंबे समय तक सारे आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोक रखा था, अब टूटने लगी थी। इस हमले में वो पराजित हो गए। कई किले तो बिना कोई लड़ाई लड़े ही हाथ से निकल गए। अहोम के राजा जयध्वज सिंघा को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने पूर्वोत्तर का बड़ा हिस्सा इस लड़ाई में खो दिया। उनको एक अपमानजनक संधि के लिए राजी होना पड़ा, जिसमें न सिर्फ राज्य, धन, भूमि, युद्ध के हाथी, बल्कि अपनी 6 साल की बेटी को भी मुगल हरम में देना पड़ा। इस पराजय और अपमान के कारण राजा जयध्वज सिंघा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद चक्रध्वज सिंघा को राजा बनाया गया और वहां से शुरू होती है लसित बोरफुकन की कहानी। लसित का जन्म सन 1620 में हुआ। उनके पिता मोमई तामुली बारबरू राज्य में एक उच्च पद पर अधिकारी थे। लसित को बचपन से ही राजकाज के कामों में रुचि थी। अपने परिश्रम से वो जल्दी ही 16 धारा बरुआ यानी शाही शॉल धारक बन गए, जो कि राज्य का प्रधान सचिव होता है। समय के साथ उन्हें कई और महत्वपूर्ण पदों पर आसीत किया गया, जैसे राजकीय घुड़शाला का अधीक्षक, राजा की सुरक्षा व्यवस्था का अधीक्षक इत्यादि। बोरफुकन बनने के बाद उनके सामने बहुत चुनौतियां थी। एक तरफ मुगलों की विशाल और संगठित सेना, जिनके पास शाइस्ता खान और दिलेर खान जैसे अनुभवी सेनापति थे, तो दूसरी तरफ अहोम की निराश और विभाजित सेना। अगले 4 सालों तक उन्होंने पूरा ध्यान सेना के निर्माण और अस्त्रों को जुटाने में लगाया। नए सैनिकों की भर्ती, जल सेना के लिए नौकाओं का निर्माण, युद्ध के हथियारों की आपूर्ति, तोपों का निर्माण, किलों के लिए मजबूत रक्षा प्रबंध इत्यादि। इन सब तैयारियों की मुगलों को भनक तक नहीं लग पाई, क्योंकि साथ में दोस्ती का दिखावा चलता रहा। ये राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का अत्यंत उत्तम उदाहरण था। सन 1667 में गुवाहाटी का फौजदार रशीद खान को बदलकर फिरोज खान को नियुक्त किया गया। वो बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसने चक्रध्वज सिंघा को सीधे सीधे असमिया लड़कियों को अपने पास भेजने का आदेश दिया। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों को मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए जोश दिलाया। लसित ने गुवाहाटी के किले को मुगलों से छीनने का निर्णय लिया। उनके पास एक शक्तिशाली और निपुण जल सेना थी और साथ ही जासूसों का जाल था। हाँ, लेकिन कमी थी तो घुड़सेना की। घेराबंदी करने के महीनों बाद तक भी गुवाहाटी को स्वतंत्र नहीं करा सके, जिसकी रक्षा इटाकुली का किला कर रहा था। अंत में उन्होंने दूसरी योजना बनाई, जिसमें इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाग हजारिका के नेतृत्व में 10-12 सिपाहियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से किले में प्रवेश कर लिया और मुगल सेना की तोपों में पानी डाल दिया। अगली सुबह ही लसित ने इटाकुली किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और एक बार फिर से गुवाहाटी ने आजादी की सांस ली। जब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह को 70,000 सिपाहियों की बड़ी सेना के साथ लसित से लड़ने भेजा। दिलचस्प बात यह है कि राम सिंह के साथ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह भी आसाम आए थे, पर उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। राम सिंह को डर था कि असामिया काला जादू और तांत्रिक विद्या में निपुण थे और उन्हें लगा कि गुरु तेग बहादुर इसे संभाल लेंगे। उधर लसित ने बिना एक पल गंवाए किलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सारे जरूरी इंतजामों को चालू कर दिया। एक बार उन्होंने अपने ही मामा को लापरवाही के कारण सिपाही की जान को जोखिम में डालते हुए पकड़ा और तुरंत ही उनका सिर कलम करवा दिया। उनका कहना था कि चाचा मामा देश से बड़े नहीं होते। इस घटना ने लसित बोरफुकन को अपने ही सिपाहियों की नजरों में उठा दिया। सबको यह विश्वास होने लगा कि मुगलों से सामना करना नामुमकिन नहीं है। अहोम सेना जब तक छापामार या गुरिल्ला युद्ध कर रही थी, तब तक राम सिंह पर भारी पड़ रही थी।
राम सिंह ने फिर कपट का प्रयोग किया। लसित से नाराज सेना प्रमुखों को गद्दारी के लिए पैसों का लालच देकर अपनी ओर करने में कुछ हद तक सफल भी हुआ। फिर उसने अहोम सेना को खुले युद्ध के लिए उकसाया। लसित को पता था कि खुले युद्ध में मुगलों से जीत पाना असंभव है, क्योंकि उनके पास बेहतरीन घुड़सेना है। लेकिन राजा चक्रध्वज सिंघा ने बेताब होकर सीधे युद्ध का आदेश दे डाला। अलाबोई के मैदानी युद्ध 1669 में अहोम सेना की भयानक हार हुई। लसित के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, पर खुशकिस्मती से लसित बच निकले और राज्य को भी बचाए रखा। दुर्भाग्य से 1670 में राजा चक्रध्वज सिंघा का देहांत हो गया और उदयादित्य सिंघा नए राजा बने। सन 1671 की शुरुआत में राम सिंह को अपने गुप्तचरों से पता चला कि अंदुराबली के किनारे पर रक्षा इंतजामों में भेद किया जा सकता है और गुवाहाटी को फिर से हथियाया जा सकता है। उसने इस अवसर का फायदा उठाने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र नदी के पास विशाल मुगल नाव सेना खड़ी कर दी। उसके पास 40 जहाज थे, जो सभी 16 बंदूकों और छोटी नौकाओं को ले जाने में समर्थ थे। दुर्भाग्यवश लसित इस समय गंभीर रूप से इतने बीमार पड़ गए कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। सन 1671 में मार्च महीने में सरायघाट की लड़ाई शुरू हुई। ये उस यात्रा का अंतिम पड़ाव था जो 8 वर्ष पहले मीर जुमला के आक्रमण से शुरू हुई थी। ये बहुत अनोखी लड़ाई थी, भारतवर्ष के इतिहास में शायद अकेली महत्वपूर्ण लड़ाई जो पूर्णतया नदी में लड़ी गई, विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी में। पहले तो अहोम सेना का प्रदर्शन और योजना फीकी साबित हुई और असमिया पीछे हटने लगी। जब लसित को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी वैद्य और ज्योतिष दोनों की इच्छा के विरुद्ध जाकर लड़ने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि मुझे अकेला भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। जल में जो त्रिभुज बन गया था, कामाख्या मंदिर, अश्वक्लांता के विष्णु मंदिर और इटाकुली किले के बीच, उसमें घमासान लड़ाई हुई। असमिया सेना ने अपनी सालों की तैयारी और युद्ध की दक्षता का पूरा उपयोग किया। अहोम सेना ने काफी आधुनिक युक्तियों का उपयोग किया, जैसे पानीगढ़, जहां हथियार इकट्ठा कर शत्रु पर दागे जा सकते थे, नाव से रचे हुए पुल जो छोटे किले बन गए, अहोम की बच्छारी नाव जो मुगलों की नाव से छोटी थी पर ज्यादा तेज और खतरनाक। अहोम सेना दोनों तरफ से मुगलों पर टूट पड़ी और इतने में मुगल सरदार मुनव्वर खान गोली से मार गया। इससे मुगलों में गड़बड़ी मच गई और दिन के अंत तक उनके 3 अमीर और 4000 सिपाही मारे जा चुके थे। मुगल सेना पूरी तरह से बर्बाद होकर मानस नदी के पार भाग चुकी थी। सरायघाट की जीत ने जो आधारशिला रखी, उसकी बदौलत आगे आने वाले राजाओं जैसे कि रुद्र सिंह ने असम का खूब सांस्कृतिक और आर्थिक विकास किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। मुगल जीत शायद अपने साथ सर्वनाश, सांस्कृतिक विनाश और मुगल गुलामी लाती, लेकिन लसित बोरफुकन और बाग हजारिका उर्फ इस्माइल सिद्दीकी जैसे लोगों की बहादुरी और प्रभावशाली नेतृत्व के कारण ये हो नहीं सका। अफसोस, सन 1671 में लसित अपनी बीमारी के चलते इस युद्ध के कुछ दिन बाद चल बसे। सन 1682 में एक आखिरी युद्ध हुआ जिसमें अहोम सेना ने इटाकुली किले से मुगलों को भगा दिया और मुगल फिर कभी असम की ओर नहीं आए। लसित बोरफुकन, अतन बुरगोहेन और बाग हजारिका जैसे वीर पुरुष आसाम में तो बहुत प्रसिद्ध हैं, किंतु आसाम के बाहर बहुत लोग इनकी घटनाओं को नहीं जानते। पर गर्व की बात है कि हर साल 24 नवंबर को आसाम में लसित दिवस मनाया जाता है। आशा है कि ऐसे महापुरुषों की ख्याति बनी रहे, बढ़ती रहे और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहे। आवा आ नागभूमि प्रदेश एनी स्थापना भारत देश આપણો સ્વતંત્ર થયો એ પછી 1957માં એ આસામનો જ એક ભૂભાગ હતો। આ પછી નગા હિલ્સ ત્વેનસાંગ ક્ષેત્રના નામથી તે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ બન્યો। ત્યાર પછી 1961માં તેને એક નવું નામ મળ્યું નાગભૂમિ અને 1 ડિસેમ્બર 1963માં તેની સ્વતંત્ર રાજ્ય તરીકે સ્થાપના થઈ। તેનો સ્થાપના દિવસ 1 ડિસેમ્બર 1963 છે। આ નાગભૂમિ રાજ્યનું નામ નાગાલેન્ડ તરીકે પણ ઓળખાય છે, પણ એ નાગાલેન્ડ એ નાગભૂમિનું જ અંગ્રેજી છે। ભૂમિ એટલે લેન્ડ અને નાગનું નાગા એટલે નાગાલેન્ડ એવું અંગ્રેજી નામ અંગ્રેજોએ આપેલું છે। આપણે તો એને નાગભૂમિ જ કહીશું કે નાગભૂમિ એટલે જ્યાં નાગ જાતિના લોકો રહે છે એવી ભૂમિ, પવિત્ર ભૂમિ એટલે નાગભૂમિ।
તો ચાલો મિત્રો જોઈએ, આજે તમને જે ચિત્રમાં દેખાય છે એ નદી છે. એ નદીનું નામ છે ધનસિરી નદી. તે દોયાંગ નદી છે. દોયાંગ નદી એ નાગભૂમિની સૌથી મોટી અને મુખ્ય નદી છે. તે વોખા જિલ્લામાંથી વહે છે. આખા શહેરમાં થઈને તે વહેતી હોવાથી 21 કિલોમીટર લાંબી નદી એ ખાલી શહેરની અંદર છે. સ્થાનિક લોકો આ નદીને જૂ કે જુલુના નામે ઓળખે છે. આ નાગભૂમિની બીજી નદી છે. કેટલું સુંદર દ્રશ્ય છે. આ ધનસિરી નદી છે. તે અસમ અને નાગભૂમિ એમ 2 રાજ્યોમાંથી થઈને વહે છે. તે 352 કિલોમીટર લાંબી નદી છે. તે આ નદી લાયસાંગ પર્વતમાંથી નીકળે છે અને આગળ જતાં ઉત્તરમાં વહીને બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં ભળી જાય છે. આ નાગભૂમિની ત્રીજી નદી છે તીજુ નદી. નાગભૂમિમાં ઘણી નાની મોટી નદીઓ છે. એ પૈકી આ તીજુ રાજ્યની પૂર્વ બાજુએ વહેતી સૌથી મોટી નદી ગણાય છે. તે કોહિમા નગરથી આશરે 20 કિલોમીટર પૂર્વમાં આવેલા શિખર ઉપરથી વહે છે. ઉત્તર અને દક્ષિણમાંથી તેને અનેક શાખાઓ મળે છે. આગળ જતાં તે નાગા પર્વત શ્રેણીને ભેદીને સારામતી શિખરથી આશરે 30 કિલોમીટર દક્ષિણે મ્યાનમારમાં આવેલી ચિંદવિન નદીને મળી જાય છે. આ સિવાય નાગભૂમિમાં દીખુ નદી, ઝાજી નદી આવી અનેક નદીઓ આવેલી છે. આ લોકમાતાઓના કારણે જ નાગભૂમિ આજે પણ જીવંત છે.